یہ سعودی عربیہ ہے جو آج کے دور میں مڈل ایسٹ کا زمین کے اعتبار سے سب سے بڑا دیش ہے۔ ویسے کوئی دور ہوا کرتا تھا کہ جب یہ مڈل ایسٹ اتہاس میں ایک یا پھر زیادہ سے زیادہ دو سلطنتوں کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوا کرتا تھا، مگر آج کی ڈیٹ میں یہی مڈل ایسٹ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور کمزور دیشوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ مگر ان کمزور اور چھوٹے چھوٹے دیشوں کے دور میں بھی سعودی عربیہ ایک ایسا دیش ہے کہ جو بہت بڑے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ مگر ذرا سوچئے کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس بڑے سے سعودی عربیہ کو بھی توڑنے کا پلان موجود ہے، اور وہ بھی دو ٹکڑوں میں نہیں بلکہ پورے کے پورے 5 ٹکڑوں میں۔ ایک ایسا پلان کہ جس کے ذریعے سے مکہ مدینہ جیسے جو خاص حجازی علاقے ہیں وہ پوری طریقے سے بے اثر ہو جائیں گے، مطلب ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، جبکہ 5 ٹکڑوں میں بڑھ چکے سعودی عربیہ کا ایک سینٹر والا ٹکڑا ایسا بھی ہوگا کہ جہاں پر وہابستان نام کا ایک نیا دیش وجود میں آئے گا۔ جی ہاں، یہ وہابستان اسی وہابی ورڈ سے ہی آیا ہے کہ جس خاص آئیڈیولوجی کو سعودی عربیہ میں فالو کیا جاتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور سے آل سعود فیملی جس آئیڈیولوجی سے بلانگ کرتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے دماغ میں اور بھی سوال جنم لیں اور آپ اور بھی زیادہ کنفیوز ہوں، اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو اس مدعے کی جڑ میں لے کر چلتے ہیں، مطلب کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ کو بھی ایک کام کرنا ہوگا، نیچے موجود جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں، اور ہاں جو پاس ہی میں موجود گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ جیسے ہی اگلی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اب ذرا سب سے پہلے آپ لوگ سعودی عربیہ کے اس میپ، اس نقشے پر نظر ڈالیے کہ جو سن 2013 میں نیو یارک پوسٹ کے دوارا پوسٹ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مڈل ایسٹ کے اندر عرب اسپرنگ اپنے پیک پر تھی، بلکہ اپنا کافی اثر دکھا بھی چکی تھی۔ اسی عرب اسپرنگ کی وجہ سے آلریڈی ٹیونسیا میں بن علی کی حکومت گر چکی تھی، لیبیا میں گدافی کی حکومت گر چکی تھی، ایجپٹ میں حسنی مبارک کی حکومت جا چکی تھی، اور یمن میں علی عبداللہ صالح کے دور کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ سیریا کے اندر جو بشار الاسد کی حکومت تھی وہ بھی اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر چکی تھی، صرف اور صرف اسی لیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کسی طریقے سے اس حکومت کو گرانے سے روک سکے۔ یہی ریزن تھا کہ اس دور میں پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی، ہر دیشوں کی راجدھانی کے اندر بس اسی بات کو لے کر چرچائیں ہو رہی تھیں کہ آخر یہ عرب اسپرنگ اور کتنا آگے تک جائے گی، اس کا اثر اور کیا کیا ہوگا، کن کن علاقوں کی اور بھی حکومتیں گریں گی، اور ہاں اس بات کو لے کر بھی ڈسکشن چل رہا تھا کہ کیا یہ عرب اسپرنگ مڈل ایسٹ کے نقشے کو بھی بدل کر رکھ دے گی۔ اگر یہ بدلے گی تو پھر عرب اسپرنگ کے بعد نیا مڈل ایسٹ کا نقشہ کس طرح کا دکھے گا۔ اور بالکل اسی دور میں ہی امریکہ کے اس مشہور اخبار مطلب کہ نیو یارک پوسٹ نے یہ نقشہ پبلش کیا تھا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ کے جو موجودہ 5 دیش ہیں وہ جلد ہی 14 دیشوں میں بدل سکتے ہیں۔ اب ویسے تو یہاں پر 5 سے 14 بننے کی بات ہو رہی تھی، مگر دنیا کا دھیان صرف اور صرف ایک ہی دیش پر گیا، اور وہ دیش تھا سعودی عربیہ، جس کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا کہ وہ 1 سے 5 ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آگے بڑھیں اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ میپ 2013 میں بھلے ہی پہلی بار نیو یارک پوسٹ جیسے ایک اہم اخبار میں پبلش ہو رہا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ یہ دنیا کے سامنے پہلی بار آیا ہو، بلکہ اس کا ذکر تو بہت پہلے بھی ہو چکا تھا، یہ دنیا میں پہلے بھی چرچاؤں میں آ چکا تھا۔ خاص طور سے قطر کے جو پچھلے امیر تھے، مطلب جو موجودہ لیڈر ہیں، ان کے جو فادر ہیں، ان کی تو باقاعدہ ایک لیک ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ لیبیا کے ایک پرانے مشہور لیڈر یعنی کہ معمر گدافی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکیوں کے پاس ایک میپ موجود ہے، ایک ایسا میپ کہ جو یہ بتاتا ہے کہ سعودی عربیہ کو 5 الگ الگ ٹکڑوں میں کیسے بانٹا جائے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ وہی لیک آڈیو تھی کہ جس کی وجہ سے کسی دور میں سعودی عربیہ اور قطر کے رشتوں میں کافی کڑواہٹ آ گئی تھی، اور باقاعدہ بعد میں جو قطر کے لیڈر تھے ان کو اس معاملے میں صفائی تک دینی پڑی تھی۔ اب اگر میپ پر واپس آئیں تو سب سے پہلے مکہ مدینہ والے اس خاص علاقے پر نظر ڈالیے کہ جس کو ہم لوگ حجاز کہتے ہیں۔ اس میپ کے اندر اس خاص اور مقدس علاقے کو تمام مسلم طاقتوں سے چھین لیا گیا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ مکہ اور مدینہ اسلام کی 2 سب سے مقدس جگہ ہیں، جس کے پاس بھی ہمیشہ سے ہی یہ علاقے رہے ہیں، اس کے پاس ایک سافٹ پاور رہتی ہے، ایک ایسی سافٹ اور سمبولک پاور کہ جو ہارڈ پاور میں بھی بدل جاتی ہے، مطلب جو طاقت بھی ان دونوں شہروں کو کنٹرول کرتی ہے، پھر وہ صرف پورے عرب ورلڈ میں ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو پوری مسلم دنیا میں ہی ایک لیڈر کے طور پر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ پچھلی لگ بھگ 1 صدی سے سعودی عربیہ بھی یہی کرتا آیا
गया है। तो इसी चीज को देखते हुए इस खास इलाके को न सिर्फ तमाम मुस्लिम देशों से छीन लिया गया है, बल्कि इस हिजाज के इलाके को एक ऐसी आज़ाद रियासत में बदल दिया गया है कि जिसको एक मल्टी नेशनल बॉडी के द्वारा रूल किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये खास इलाका एक रिलीजियस टूरिज्म में बदल जाएगा कि जिसके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे यूरोप के अंदर वेटिकन सिटी है कि जो आज ईसाइयों की सबसे मुकद्दस जगह तो समझी जाती है, वहाँ पर ईसाई लोग जाते भी हैं, मगर पॉलिटिकली दुनिया तो छोड़िए बल्कि यूरोप के अंदर भी उसका कोई असर नहीं है। बिल्कुल यही चीज इस मैप के अंदर हिजाज के साथ भी की जा रही है। आगे बढ़ें तो इस टूटे हुए मैप के अंदर हम लोगों को एक दूसरा टुकड़ा नॉर्थ अरबिया के नाम से दिखाई देता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये जो नॉर्थ के बॉर्डर्स हैं ये लगभग वही बॉर्डर्स हैं कि जो किसी दौर में ब्रिटिश एम्पायर ने सऊदी अरबिया के जो पहले किंग थे मतलब कि अब्दुल अजीज उनके ऊपर थोपने की कोशिश की थी। जी हाँ, जिस दौर में सऊदी अरबिया वजूद में आ रहा था उसी दौर में ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसा रोड बनाने की कोशिश कर रहा था कि जो पूरे यूरोप से होते हुए उसकी तमाम कॉलोनीज से गुजरे और फिर इंडिया तक पहुंचे। और इस रोड को गुजरने के लिए जमीनी तौर पर नॉर्थ अरबिया के इलाके से गुजरना था। किंग अब्दुल अजीज ने यहाँ से रोड गुजारने की ब्रिटिश एम्पायर को इजाजत न दी, जिसके बाद फिर हुआ ये कि नॉर्थ अरबिया के इसी इलाके में ही सऊदी किंगडम के खिलाफ एक के बाद एक कई बार बगावत हुई। ये बगावत इखवान से जुड़ा हुआ जो एक लीडर था फैसल उसकी तरफ से होती थी। किंग अब्दुल अजीज की तरफ से जैसे ही इस बगावत को कुचला जाता था, कुछ वक्त के बाद ये बगावत दोबारा हो जाती थी। दावा किया जाता है कि आखिर में सऊदी किंगडम को यही पता चला था कि खुफिया तौर पर इन तमाम बगावतों को सपोर्ट करने वाला दरअसल कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर था। अब क्योंकि भांडा फूट जाने के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इन लोगों की मदद करना बंद कर दी थी, जिसके बाद सऊदी अरबिया की ये हुकूमत पूरी तरीके से इस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गई थी और उस दौर में ये इलाका टूटते टूटते बच गया था। आगे बढ़ें तो इस मैप के अंदर एक और गौर करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे जो बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हद से ज़्यादा छोटे हैं, तो उनको और भी ज़्यादा छोटा करके क्या मिलेगा? तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये सारे देश इस मैप में जो मौजूद नहीं हैं तो इसका रीज़न ये नहीं है कि ये पहले से ही छोटे हैं, बल्कि इसका रीज़न ये है कि अमेरिका पहले से ही इन तमाम छोटे छोटे देशों को अपने लिए एक पिलर के तौर पर इस्टेब्लिश कर चुका है। अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े और ताकतवर मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं वो सब यहीं पर मौजूद हैं। उसको इस इलाके में किसी से अगर जंग करनी है तो वो यहीं से करता है। किसी के ऊपर अगर बिना जंग करे हद से ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना है या नज़र रखनी है तो वो सब कुछ भी यहीं से किया जाता है। इवन अगर सऊदी अरबिया को इन 5 टुकड़ों में बांटने का फैसला कर ही लिया जाए तो वो काम भी यहीं से होगा। अब इस मैप के ऊपर थोड़ा और गौर करें तो हम लोगों को सऊदी अरबिया के टूटे हुए 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ईस्टर्न अरबिया नजर आता है। मतलब सऊदी अरबिया का वही इलाका कि जो ईरान वाली साइड में मौजूद है। इस इलाके के बारे में 2 सबसे खास चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि सऊदी अरबिया की इकोनॉमी जिस तेल पर डिपेंड है वो तेल या उसकी जो ज्यादातर फैसिलिटीज हैं वो दरअसल इसी इलाके में मौजूद हैं। और दूसरी खास चीज ये है कि ये इलाका शिया आबादी वाला है। मतलब सऊदी अरबिया के ज्यादातर शिया इसी इलाके में रहते हैं। 2011 के दौर में जब अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ था और मिडल ईस्ट के कई इलाकों में हुकूमतों के तख्ते पलटे जा रहे थे तो उस दौर में खुद सऊदी अरबिया भी इसी इलाके को लेकर सबसे ज्यादा परेशान था। सऊदी अरबिया लंबे वक्त से ही ईरान के ऊपर ये इल्जाम लगाता आया है कि वो इस इलाके में रहने वाली जो शिया पॉपुलेशन है उसको सऊदी अरबिया के खिलाफ भड़काता है, जबकि ईरान की तरफ से सऊदी किंगडम के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो शिया पॉपुलेशन के साथ भेदभाव करता है, उनके ऊपर जुल्म और सितम करता है। खास तौर से उस वक्त पूरी शिया दुनिया में मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया था कि जब एक बहुत बड़े सऊदी अरबिया के शिया स्कॉलर्स, शिया आलिम को सऊदी हुकूमत ने मौत की सजा सुना दी थी। इनका नाम था निम्र अल निम्र। ये दरअसल साल 2011 में होने वाले उन विरोध प्रदर्शन, उन प्रोटेस्ट के बहुत बड़े सपोर्टर थे, या कह सकते हैं कि वकालत करने वाले इंसान थे कि जो इसी इलाके में मतलब ईस्टर्न सऊदी अरबिया में शिया पॉपुलेशन की तरफ से सऊदी किंगडम के खिलाफ किए जा रहे थे। बाद में सऊदी हुकूमत ने इनके ऊपर आतंकवाद के इल्जाम लगाए थे और इनको मौत की सजा दे दी गई थी।
तो प्लान ये है कि जैसे ही सऊदी अरबिया के 5 टुकड़े वाले मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा, सऊदी अरबिया कमज़ोर होना और टूटना शुरू होगा, फ़ौरन ही ईस्ट के इलाके में रहने वाली ये जो तमाम शिया पॉपुलेशन है ये खड़ी हो जाएगी और मौके का फ़ायदा उठाकर अपने एक अलग छोटे आज़ाद देश का ऐलान कर देगी। और जाहिर है पीछे से इसकी सपोर्ट में ईरान खड़ा हुआ होगा। एक और चीज़ कि जो इस मैप के अंदर भी मेंशन नहीं की गई है वो ये है कि ये जो ईस्टर्न अरबिया का ख़ास इलाका है, इसका कुछ टुकड़ा ऐसा भी है कि जिसको लेकर यूएई ये दावा करता है कि ये उसका हिस्सा है। जी हाँ, यूएई एक दो बार इस तरह के मैप यूनाइटेड नेशन या बाकी जगह पर पेश भी कर चुका है कि जिसके अंदर देखा जा सकता था कि यूएई के मैप में कुछ ऐसा हिस्सा शामिल था कि जो आज की डेट में सऊदी अरबिया के कंट्रोल में है और सऊदी अरबिया उसको अपना मानता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस 5 टुकड़ों वाले मैप के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है उसको देखते हैं कि जिसका नाम है साउथ अरबिया। आपको अगर नहीं पता है तो बताते चलें कि ये जो नीचे मौजूद यमन नाम का देश है, ये लंबे वक्त से ही ये क्लेम करता आया है कि सऊदी अरबिया का जो साउथ का इलाका है उसका एक बड़ा हिस्सा दरअसल यमन का इलाका है। सऊदी अरबिया को खुद से ही इन खास इलाकों को छोड़कर चले जाना चाहिए, मतलब यमन को दे देना चाहिए, वरना कभी ना कभी उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो साथियों, इस इलाके को लेकर भी प्लान बिल्कुल सेम और सिंपल है कि जैसे ही इस मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा, सऊदी अरबिया को अगर किसी भी तरीके से कमज़ोर किया जाएगा तो फिर नीचे मौजूद जो यमन के अंदर ताकतें हैं, वो चाहे हुती हों या बाकी ताकतें हों, वो फ़ौरन ही आगे बढ़कर इन तमाम इलाकों पर पकड़ बनानी शुरू कर देंगी, क्योंकि वो तो लंबे वक्त से ही इसी चीज़ के ही इंतज़ार में बैठे हैं। तो अब बारी आती है 5वें और आखिरी टुकड़े की, वही फाइनल टुकड़ा कि जो बिल्कुल बीच में मौजूद है, नाम है वहाबिस्तान। और यही वो हिस्सा होगा कि अगर आले सऊद की इस पूरे इलाके में कहीं पर भी हुकूमत बाकी रहती है तो वो यहीं पर बाकी रहेगी, क्योंकि न सिर्फ खुद इस खानदान का भी हिस्टोरिकली यहीं से ताल्लुक है, बल्कि जो वहाबी मूवमेंट है उसकी शुरुआत भी किसी दौर में इसी इलाके से हुई थी। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो वहाबिस्तान होगा ये हद से ज्यादा कमजोर इलाका होगा, क्योंकि तेल जैसी जो सबसे बड़ी दौलत है वो तो ऑलरेडी इधर उधर की स्टेट्स में जा चुकी होगी। और उससे भी बढ़कर जो हैरान कर देने वाली चीज है वो ये कि ये एक लैंडलॉक कंट्री होगी। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा इलाका चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो भी दुश्मनों से घिरा हुआ है। मतलब इसकी जमीन का कोई भी टुकड़ा उस समुद्र से लगा हुआ नहीं होगा कि जिस समुद्र के जरिए से आज भी दुनिया का ज्यादातर व्यापार होता है। अगर इसको समुद्र तक जाना होगा, कि जो कि हर कंट्री को जाना ही होता है, तो या तो यूएई का सहारा लेना पड़ेगा या फिर ईस्टर्न अरबिया का वो इलाका कि जो ईरान वाली सपोर्ट वाला होगा उसका सहारा लेना पड़ेगा, या फिर साउथ वाला इलाका कि जहाँ पर हूती मौजूद हैं, या फिर नॉर्थ वाला इलाका कि जहाँ पर अल्टीमेटली इजराइल मौजूद होगा। मतलब हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन। वैसे आज हम लोगों ने आपके सामने ये जो मैप और इससे जुड़ा हुआ पूरा मंसूबा पेश किया है, ये किसी दौर में खूब चर्चाओं में रहा करता था। जैसा कि मैंने बताया कि अरब स्प्रिंग और उसके बाद के सालों में तो ये न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे अखबारों में भी छप रहा था, मगर उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गया था। उसकी सिंपल सी वजह यही थी कि सऊदी अरबिया अमेरिका के बहुत क्लोज आ गया था। मगर अब कि जब अक्टूबर 2023 के बाद से और मेनली ईरान वॉर के बाद से चीजें एक बार फिर से बड़ी तेजी के साथ बदल रही हैं, तो आप आने वाले सालों में देखेंगे कि ये मैप खबरों में दोबारा वापस आएगा। उसकी मेन वजह यही है कि सऊदी अरबिया बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रहा है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल चलाना चाहते हैं। खास तौर से ईरान वॉर के बाद से तो लगातार ये देखा गया है कि वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए यूएई जैसे कुछ गल्फ देशों से अलग रुख अपना रहा है और खुल्लम खुल्ला अमेरिका और इजराइल की साइड लेने की बजाय बीच में खेलने की कोशिश कर रहा है। वैसे अगर आप लोग अरब दुनिया के इस छोटे से देश मतलब कि यूएई की पिछले कुछ सालों की एक्टिविटीज देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सऊदी अरबिया से जुड़े हुए इस मैप का क्या फ्यूचर है, क्योंकि आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि यूएई के जिसने मौजूदा दौर में अपने एक कंधे पर इजराइल का हाथ रखा है और दूसरे पर अमेरिका का हाथ रखा है, वो कभी तो यमन के अंदर सऊदी अरबिया को ही पूरी तरीके से वहां से निपटाने की नाकाम कोशिश करता है, तो कभी हम देखते हैं कि वो रेड सी पर कंट्रोल जमाने के लिए सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड जैसे देशों में इंटरफेयर करता है। और जाहिर है यूएई जैसा देश कि जो न सिर्फ साइज में ही बहुत छोटा है बल्कि जिसकी आबादी भी बहुत कम है, वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट से ही करता है। कुछ साल पहले तक हम शायद ये सोच भी नहीं सकते थे, मगर आज देखिए कि चाहे सूडान हो, लिबिया हो, सोमालिया हो या फिर यमन हो, हर जगह पर ही यूएई और सऊदी अरबिया आमने सामने खड़े हैं। अब साथियों, एक लंबी रिसर्च के बाद हमने तो आप लोगों के सामने ये सारी कीमती इन्फॉर्मेशन रख दी। बाकी आप लोगों का इस पूरे मामले
معاملے پر کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، جاتے جاتے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں موجود جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں۔